ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسمیشن میڈیم، کیونکہ ہم نے منیمم ریکوائرمنٹس کی جب بات کی کہ ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کن ڈیوائسز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کمپیوٹر ہونا چاہیے، ایک موبائل ہونا چاہیے، جس کو ایک نوڈ ہونا چاہیے جس کو ہم ایک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ NIC، جس کی ہم نے تفصیل سے بات کی۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ وہ ہے میڈیم is used to transfer data from one computer to another computer۔ جب ہمیں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر، ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک، سرور سے کلائنٹ سے سرور تک، تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹرانسمیشن میڈیم یا ٹرانسمیشن میڈیا کہے۔ تو اسی ٹرانسمیشن میڈیا کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے OSI لیئرز نہیں پڑھے کیونکہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے سلیبس میں، تھوڑا میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ سب سے نیچے والی لیئر، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹا بیس میں پڑھایا، فزیکل لیئر، کنسپچول لیئر اینڈ ایکسٹرنل لیئر۔ اسی طریقے سے جب ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو لاسٹ لوور لیول پہ، سب سے نیچے والی لیول پہ لیئر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل لیئر۔ یہ فزیکل لیئر کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہے، یعنی کنورٹ کرتی ہے انٹو اے سگنل، ایک سگنل میں، اور اس کو اس میڈیم پہ ڈالتی ہے، چاہے وہ کیبل فزیکل میڈیم ہو یا ایئر ہو۔ یہ ہمارے فزیکل لیئر جو ہے، جیسے ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس میں پڑھا نا کہ مختلف لیئرز ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی OSI لیئر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی فزیکل لیئر ہے، نیٹورک لیئر ہے، ڈیٹا لنک لیئر ہے، ڈفرنٹ لیئرز ہوتی ہے اس میں بھی۔ تو سب سے نیچے والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل لیئر۔ فزیکل لیئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی مشین ہوتی ہے نا، برابر اسی طریقے سے آپ لوگ، کوئی مشین ہوتی ہے نا، وہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، اور جب ہم میٹیریل اس میں ڈالتے ہیں، ہم کہیں پہ میٹیریل ڈالتے ہیں، بعد میں میٹیریل آگے بڑھتا ہے، وہ ایک مرحلے سے گزرتا ہے، پھر اس کی دوسری پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر تیسری چیز مکس ہوتی ہے، پھر اس کی کورنگ ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزر کر بعد میں لاسٹ پہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور وہ نیچے گراتا ہے اس کو، اور لوگ اس کو اٹھا کے آگے بھیجتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا مشین۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم کسی، فار ایگزامپل ہم لوگ ای میل لکھتے ہیں، ای میل لکھیں گے، ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ای میل لکھیں گے، ای میل ہم اپنی لینگویج میں لکھیں گے، اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نیٹ ورک پہ، اور بلک میں ہم لوگ اتنی بڑے میسج نہیں بھیج سکتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں، چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو لیئرز ہے نا، ہر کسی لیئر میں اس ڈیٹا کی ایک ایک پروسیسنگ ہوتی ہے، اور لاسٹ پہ یہ پہنچتا ہے کہاں پہ؟ فزیکل لیئر پہ۔ فزیکل لیئر پہ اس ڈیٹا کو کس میں کنورٹ کیا جاتا ہے؟ ایک سگنل میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈالا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ یعنی فزیکل لیئر ہوتی ہے ڈائریکٹ، وہ ڈائریکٹ بات کرتی ہے کس کے ساتھ؟ فزیکل میڈیم کے ساتھ، کیبل کے ساتھ، یا جو بھی میڈیم ہوگا، چاہے گائیڈڈ میڈیم ہوگا یا ان گائیڈڈ میڈیم ہوگا۔ تو اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ڈیٹا کو اس سگنل میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس میڈیم کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکے۔ مجھے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، تھوڑا بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو اس OSI لیئر کے متعلق، کس والی لیئر میں کیا کام ہوتا ہے ہمارے ڈیٹا کا۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ دینے کی کوشش کی اس وقت کہ جس طرح سے ہر کوئی چیز جب ہم بناتے ہیں تو اس کو ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی پروڈکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو۔ تو
इसके बाद यानी एक मशीन में हम डालते हैं उसको, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर लास्ट पे हमारा पैकेट प्रोडक्ट यानी रेडी प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से जब हम डेटा को भेजते हैं, जब हमें डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक नेटवर्क पे, इसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहले यह हमारी फॉर्म में होता है, बाद में इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना पड़ता है, बाद में इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी, ताकि एनक्रिप्शन की जाती है इसको कोडिंग में करना, ताकि इसको रास्ते में कोई एक्सेस ना कर सके कि ये मैसेज क्या है। इसके नेटवर्क पे हमारे नेटवर्क इश्यूज होते हैं ना, सिक्योरिटी इश्यूज, उनको एड्रेस किया जाता है। इसी तरीके से इनको इन पैकेट्स को नंबर दिया जाता है, एक मैसेज को बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर किसी पैकेट को क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, ताकि रिसीविंग एंड पे उनको फिर से वापस जमा किया जाए उसी सीक्वेंस में, उसी तरतीब में, उसी शेप में जिस तरह से उसको यहां से सेंडर ने भेजा है। तो आप मुझे बताना कुछ नहीं है कि लोवेस्ट लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर, और वो फिजिकल लेयर क्या करती है, वो हमारे इस डेटा को एक सिग्नल में कन्वर्ट करती है ताकि वो ट्रैवल कर सके थ्रू द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस वक्त आप लोगों को सिंपल याद रखना है मीडियम। व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम? इट इज द पाथ, इट इज द चैनल थ्रू विच data gets transferred from one place to another place. It is a path, it is a channel through which data gets transferred from one place to another place, जिससे डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आवाज माइक्रोफोन तक कैसे पहुंचती है? मेरी आवाज माइक्रोफोन तक ईयर से पहुंचती है, या अगर आप मेरे फिजिकल फेस टू फेस क्लास में होते हैं तो मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक किस तरह से पहुंचती है? ये पहुंचती है थ्रू ईयर। इसी तरीके से मेरी आवाज इस वक्त ये कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर ये इसको इस केबल में डालता है, इस केबल में डालता है। इस केबल की मदद से ये कहां पे पहुंचता है? मॉडियम के पास, और मॉडियम इसको थ्रू एयर आप लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचाता है। वहां पे भी इसकी प्रोसेसिंग होती है, तब जाके आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं। तो ये मीडियम के थ्रू हो रहा है, मेरी बात आप लोगों तक एक मीडियम के जरिए पहुंच रही है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, चाहे वो गाइडेड हो या अनगाइडेड हो, क्योंकि हमारे पास दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडियम और दूसरा क्या होता है? अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम एंड अनगाइडेड मीडियम, मीडियम के दो किस्में हैं, मीडियम के दो किस्में हैं, एक है गाइडेड मीडियम, दूसरा है अनगाइडेड मीडियम। तो गाइडेड मीडियम में क्या है? गाइडेड मीडियम में एक फिजिकल वायर इस्तेमाल की जाती है, फिजिकल वायर, एक फिजिकल वायर इस्तेमाल की जाती है तो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वन नोड टू अनदर नोड। और जो अनगाइडेड मीडियम है उसमें एयर का इस्तेमाल किया जाता है, एयर का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहां पे एक ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होता है। जैसे 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक इन वेव्स को हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं ना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो उसका एक बाज़ाब्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक जो रेंज है इसको हम कहते हैं रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव कहते हैं। इन वेव्स को हम लोग कहते हैं रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। और 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज तक जो वेव्स है उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और इसी तरीके से उसके बाद 400 टेराहर्ट्ज से लेकर के 900 टेराहर्ट्ज तक हम लोग कहते हैं लाइट वेव। तो यही वेव्स इस्तेमाल की जाती है टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन मीडियम की। सिंपल छू वन कि ट्रांसमिशन मीडियम इज द मीडियम, it is the channel, it is the path
through which data gets transferred from one place to another place. What are the types of medium? There are two types of mediums. One is guided medium and another is unguided medium. Guided medium में क्या होता है, एक physical wire इस्तेमाल की जाती है to transfer data from one place to another place. और unguided में क्या होता है, इसमें एयर को इस्तेमाल किया जाता है to transfer data from one place to another place. अब हम बात करेंगे guided medium की, यानी जहां पे एक physical wire इस्तेमाल की जाती है, फिजिकल वायर इस्तेमाल की जाती है टू ट्रांसफर डेटा. फिजिकल वायर हो सकती है ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल जो आप लोग अपने घर में एक टेलीफोन लाइन केबल जो है, टेलीफोन वाली केबल जो पेयर होती है, दो एक जोड़ा होता है, और वो एक जोड़ा क्या होता है, ट्विस्ट करके होता है, ट्विस्टेड होता है. ट्विस्टेड इंटरफेरेंस को कैंसल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए उसको ट्विस्ट किया जाता है. उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. दूसरी क्या है, कोएक्सियल केबल. दूसरी है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल आप लोगों के घर में जो डिश एंटेना से आपके टीवी तक जो केबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और रिसीवर से टीवी को जिससे हम जोड़ते हैं, नहीं वहां से, हाँ वहां से डिश से वहां तक, क्योंकि वहां से हम दूसरा प्लग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम वो वाली केबल जो है जो हम डिश से रिसीवर तक इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल. और दूसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यहां से फाइबर बिछा रहे हैं. फाइबर ऑप्टिक केबल से पॉसिबल हुआ ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट. वो किससे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ फाइबर ऑप्टिक केबल से. ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल है, इनमें डेटा चलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मगर ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना, इसमें लाइट की सूरत में डेटा चलता है, सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स चलती है, और लाइट की सूरत में हम लोग, लाइट सिग्नल्स में हम लोग अपने डेटा को मॉड्यूलेट करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. और लाइट तेज होती है, इसलिए उससे जो हमारी स्पीड है वो बहुत होती है, क्योंकि लाइट तेज होती है, उससे हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा को बड़ी तेजी से, फास्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो फाइबर ऑप्टिक से ही पॉसिबल हुआ कि हम लोग आजकल हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. तो तीन वायर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाइडेड मीडियम में. फिजिकल वायर्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल. तो ट्विस्टेड पेयर केबल हम किसको कहते हैं? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि दो केबल्स, दो वायर्स एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है. जैसे आप लोग फोन लाइन को देखते हो, फोन लाइन, फोन की जो वायर होती है ना, जो हमारे बाहर से जो हम पोल से जो हम कनेक्शन लाते हैं अंदर अपने टेलीफोन तक, वो जो है, या हम ब्रॉडबैंड, इसमें ब्रॉडबैंड डिवाइस में जो हम इंसर्ट करते हैं केबल, हम उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? वो दो वायर्स की होती है, और वो दो वायर्स आपस में क्या होती है, ट्विस्टेड होती है, और उनके अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जिनमें सिग्नल ट्रैवल कर सकती है, जिनमें सिग्नल ट्रैवल कर सकती है. दो कंडक्टर्स होते हैं. तो इसका रेंज कहां से है? 100 हर्ट्ज से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज तक. इसका रेंज होता है 100 हर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज तक. ये इसका रेंज है.
इस रेंज में ये सिग्नल्स को अलाउ करता है। तो दो तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है। एक होती है अनशील्डेड, अनशील्डेड यानी उनमें कोई शील्ड नहीं होता है, ऐसा जहां पे प्लास्टिक कवर और मेटल शील्ड है, यहां पे ये इस ट्विस्टेड पेयर केबल में होता है। तो ये जो है दिस इज ए ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, हैविंग इंसुलेशन एंड आउटर साइड में उसका एक ये होता है मेटल शील्ड होता है, उसके बाद बाहर से प्लास्टिक कवर होता है। तो इस वाले ट्विस्टेड पेयर को हम कहेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और यहां पे दूसरा आप देख रहे हो कि इसमें कोई शील्ड नहीं है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अब हम देखो चलो अब हम इससे आगे कल बात करेंगे, इस वक्त टाइम हो गया 10 बज गए, तो इस वक्त इतना काफी है, तो कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।